A very good evening to all of you, my dear kids. I am Anisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our eTuition family. My dear class 10 students, today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is How do organisms reproduce? We have studied about different types of life processes, right? हमने पढ़ा था there are different types of life processes which is important for a living organism. Reproduction is one of them. But the difference is that without taking in food or without digesting, can we live? No, right? But without reproduction we can live. But it is also important in what way we will discuss today. And we will discuss about different modes of reproduction, okay? So let's get started. So what are the points we are going to discuss today? We will be discussing about reproduction, what is variation, types of reproduction, asexual reproduction and types of asexual reproduction. Okay. So have you ever wondered that a dog gives birth to dogs only, humans give birth to humans only, monkeys give birth to their kind and tigers give birth to baby tiger. सो जो ऑर्गेनिज्म होता है दे यूज टू गिव बर्थ टू देयर टाइप ओनली. ओके, अपने ही तरह के जानवरों को, अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को दे यूज टू गिव बर्थ. लाइक दैट इन प्लांट्स ऑल्सो. मैंगो प्लांट विल ग्रो मैंगो ओनली, नो. एप्पल प्लांट विल गिव एप्पल्स ओनली. बट वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? Because see, this is reproduction. What is reproduction? Reproduction is the process by which living organisms produce more living organisms of its own kind. As I was telling you, okay, it is a process by which living organisms will produce more living organisms. It means their next generation, their offsprings, but they should be of their own type. And it is one of the important process which ensures the continuation of similar kind of individuals. So why it is important? It helps us to continue our species generation after generation. Just think, अगर रिप्रोडक्शन ना हो, राइट, अगर मैंगो प्लांट का मैंगो सीड ही ना बने तो उससे नया पेड़ तो नहीं बनेगा. तो वो एक मैंगो प्लांट आफ्टर इट्स लाइफ स्पैन इट विल डाई, तो मैंगो और मिलेंगे नहीं. Like that, if cat will not give birth to its kittens, then kittens will grow to become a cat. Again, they used to reproduce. But if a cat will not produce its young ones, so what will happen? The species of cat will be vanished, right? So for the continuation of a species, reproduction is important. And see, the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. DNA we know, right? Deoxyribonucleic acid that is present in the nucleus, okay? And see, in it, inside our nucleus, there DNA is present which helps to transfer some characters from parents to the offspring. Can you see? This is the DNA, okay? It is double helical, it is double stranded. But what happens while cell division, these strands used to separate, okay? And after that, can you see, this one is the parent strand and new strand is getting, see, they both were separated and these are called as parent strand. Again, they will form a new copy of their daughter strands. New strands will be formed, okay? So, okay, तो ऐसा तो होता है डीएनए की कॉपीज. इससे क्या पता चलता है कि वेरिएशन आते हैं. व्हाट इज वेरिएशन? ओके, सो वेरिएशन बेसिकली, सी, व्हाट इज वेरिएशन? ऑर्गेनिजम्स, डू दे एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं क्या? नो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, यू एंड योर मदर और फादर, ओके, आर यू एग्जैक्ट कॉपीज? आपको और मम्मी को खड़ा कर दे तो वी विल नॉट डिफ्रेंशिएट. ऐसा नहीं है, राइट? वी यूज टू लुक सिमिलर बट नॉट सेम. सो दिस डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज कॉल्ड एज वेरिएशन. एंड हाउ डज इट हेल्प? इट लीड्स टू इवोल्यूशन एंड हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स एडप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, राइट? और क्या करता है? एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट करने में और नए कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म करने में. और क्या करते हैं ये लिविंग के लिए, ओके, कंटिन्यूएशन वो अडॉप्ट कर लेते हैं, सो दे विल लिव मोर. लाइक एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है, इट्स रियल फैक्ट. बिफोर इंडस्ट्रियल पीरियड, ओके, मॉथ्स के बाद, कैन यू सी इन दिस पिक्चर टू मॉथ्स आर देयर, ब्लैक कलर मॉथ एंड वाइट कलर मॉथ, ओके. बिफोर इंडस्ट्रियल पीरियड
द नंबर ऑफ वाइट मोथ्स वर मोर एंड ब्लैक मोथ्स वर वेरी लेस. व्हाई? देखो, बिफोर इंडस्ट्रियल पीरियड जो ट्रीज होते हैं ना, उनके बार्क कैसे हैं? वाइट कलर के. एंड इनका रंग देखो इसके साथ कैमोफ्लेज हो जाता है, यानी कि मिक्स हो जा रहा था. सो बर्ड्स कैन नॉट सी दीज वाइट मॉथ्स बट दे कुड सी द ब्लैक कलर मॉथ्स. तो बर्ड्स आए और ब्लैक कलर मॉथ्स को खा लिए. लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री बढ़ गए, पॉल्यूशन बढ़ गई, सो ट्रीज के बार क्या हो गए? ब्लैक कलर के हो गए. तो ब्लैक कलर मॉथ छिप गए और वाइट कलर के मॉथ दिखने लगे और बर्ड्स केम एंड एट ऑल दिस. कैन यू सी हियर? सी, इंडस्ट्रियल पीरियड, बिफोर इंडस्ट्रियल पीरियड. ओके, ये वाइट कलर, ये ब्लैक कलर. देन इंडस्ट्रियल पीरियड के बाद ये सारे पेड़ के बार जो ब्लैक कलर के हो गए और ये जो बर्ड्स है वाइट कलर के मॉथ को खा लिए. अंडरस्टूड? सो क्या होता है, ये जो वेरिएशन आए, ठीक है, तो ये अडेप्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को, जिसकी वजह से क्या है, उनके बेटर सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ती है. राइट? देन एग्जैक्ट कॉपीज और डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल सिंचैन के फैमिली को ले लो. ओके, ये है सिंचैन के, 1 सेकेंड. ओके, ये है सिंचैन के कौन है? फादर, मदर. दिस इज सिंचैन. ओके, क्या ये एग्जैक्ट कॉपी है? इसके मम्मी और पापा की एग्जैक्ट कॉपी है सिंचैन? नो. राइट? सिमिलर देख सकता है, उसके आंखें सेम है, आईब्रो सेम है पापा की तरह. राइट? बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं है. यस? या. So like that, in many cases, offspring may have totally new version of their parental characteristics. These are called as variation. So ये जो differentiation आता है, ये है variation, which are essential for evolution. New species के बनने के लिए ये ज़रूरी होते हैं. Then types of reproduction. Okay, so there are two modes by which organism reproduce. One is asexual, another one is sexual reproduction. This is Hydra, which reproduce asexually, and we humans reproduce sexually. What is the difference between them? We will be discussing. So first one comes asexual reproduction. What is asexual reproduction? The type of reproduction in which only a single parent is involved, called as asexual reproduction. यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत नहीं है. Either male or female, only one parent can involve in the asexual reproduction, and there is no fusion of male and female gamete. Right? यहाँ पे gametes के fusion नहीं होंगे. Next is types of asexual reproduction. So different types are there: fission and fragmentation, regeneration, budding, and vegetative propagation, about which we will be discussing, and spore formation. First one is fission. What is fission? Found in unicellular organisms such as amoeba, paramecium and leishmania. इनमें क्या देखने को मिलता है? जनरली यूनिसेलुलर, जिनके बॉडी बहुत सिंपल होते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है फिशन. सो पेरेंट सेल में डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल इन केस ऑफ एमोएबा. ठीक है, ये है एमोएबा. पहले क्या हो रहा है, इसका न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होके ये 2 सेल्स बन रहे, 2 डॉटर सेल्स. इसे क्या बोला जाता है? बाइनरी. बाई मीन्स 2. ये 2 पार्ट्स हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन. अगर मोर देन 2 हो गए तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल फिशन. ओके, ना बाइनरी फिशन इन एमोएबा. पहले क्या होगा? एमोएबा इज देयर, पहले न्यूक्लियस विल बी डिवाइडेड, आफ्टर द साइटोप्लाज्म, देन 2 डॉटर एमोएबा विल बी फॉर्म्ड. Then types of binary fission. Okay, binary fission are of 3 types. One is longitudinal, through the length it will be, and transverse binary through the breadth, and irregular binary fission, irregularly. Okay, next comes multiple fission. Plasmodium, you know, the carrier of, yes, Plasmodium is a Plasmodium vivax, which is the carrier of malaria disease. Okay, multiple fission, multiple copies are getting generated, that's why it is called as multiple fission. Here budding. Budding means regenerative cells are used to form a bud. Can you see, these are bud like structures which develops into an adult organism. So they will mature and they will be separated from this body. Okay, like Hydra, this is Hydra, this is yeast also. They used to not like these faces, but for making it interesting I have put this one. So like this, bud will be formed, and after certain time they will be detached. See, they are detaching and new organisms will be formed. Next is fragmentation. Fragments यानी कि छोटे छोटे parts. Okay, so organisms break up into smaller pieces upon maturation. तो जब वो बड़े हो जाते हैं, तो मेच्योर हो जाते हैं, तो अपनी बॉडी को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और फ्रॉम दैट फ्रेगमेंट्स दे यूज टू मेक अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ईच पीस ग्रोज इनटू एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, like spirogera.
नेक्स्ट इज रीजनरेशन. रीजनरेशन क्या होता है माय डियर किड्स? When cut into pieces, each fragments of some organisms grow into an individual. यहाँ पे देख रहे हो ये है प्लानेरिया, राइट. इसको अगर हम छोटे से पार्ट में काटेंगे ना, इट हैज़ द कैपेसिटी कि वो अपना पूरा पार्ट बना ले, लाइक स्टारफिश, हाइड्रा, प्लानेरिया. अगर मैं अपने उंगली को काट के रख दूँ, वहाँ से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा? नो, राइट. सो वी डू नॉट हैव अ रीजनरेशन कैपेसिटी, बट प्लानेरिया, hydra and starfish can. And regeneration is not only for reproduction, more than being a mode of reproduction, this is considered as a mechanism by which some organisms can restore lost body part. छिपकली देखिए, उसकी पूंछ क्या होती है? कट जाती है, ओके, एंड दे कैन प्रोड्यूस देयर न्यू वन, ओके. नया बॉडी पार्ट क्या हो सकता है? वो बन सकता है वहाँ से. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. ओके, स्पोर्स आर स्ट्रक्चर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिजम्स. जैसे आपने देखा है ये फंगस जो ग्रो करता है, दिस स्पोर्स कैन फ्लाई अप टू सर्टन एरिया एंड दे कैन फॉर्म देयर. लाइक दैट प्लांट्स, सम प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स, फंगस एंड सम प्लांट्स. Now vegetative propagation. See, in plants, vegetative parts are there, reproductive part is there. Which is the reproductive part? The flower. So keeping aside the flower, we have so many vegetative parts like root, stem, leaves, etc. So the mode of reproduction in plants by which vegetative part develop into a new plants under appropriate condition. जैसे हम क्या करते हैं ना, फूल, जो फूल के पौधे होते हैं वो क्या करते हैं हम, द फ्लावरिंग प्लांट्स, हम उनके स्टेम को लाके लगा देते हैं. आफ्टर सर्टेन डेज दे यूज टू ग्रो. दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. फर्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग क्या होता है? कैन यू सी, यहाँ पे क्या करें, कट किया जा रहा है, राइट. यहाँ पे कट किया जा रहा है, देन और एक प्लांट का जो ग्राफ्ट है उसको लाके हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया. देन इसको हम क्या करेंगे? टाई. वी विल टाई इट. देन क्या होगा? सी, पार्ट्स ऑफ टू और मोर डिजायरेबल प्लांट्स आर कट एंड ज्वाइंट टुगेदर सो दैट दे अपियर टू ग्रो एज अ सिंगल प्लांट. और दोनों प्लांट, एक ही प्लांट में दो प्लांट ग्रो करेंगे, ओके. तो लाइक एप्पल एंड पीच में ऐसे किया जाता है. नेक्स्ट इज लेयरिंग. लेयरिंग क्या होता है? देखो, एक प्लांट होगा, राइट, वो यहाँ पे तो अटैच है, फिर दोबारा ये जाके यहाँ से उसके रूट्स अगर बढ़ गए तो इसको बोला जाता है लेयरिंग. ए पोर्शन ऑफ एन अबव ग्राउंड स्टेम ग्रोज रूट्स व्हाइल स्टिल अटैच टू पेरेंट प्लांट. पेरेंट प्लांट से अटैच है लेकिन दोबारा इसके रूट्स ग्रो कर रहे हैं, फिर यहाँ से ये नया प्लांट फिर से ग्रो कर सकता है, ओके. एग्जाम्पल लाइक क्लाइंबिंग रोजेस, रोडोडेंड्रॉन एंड हनीसकल. नेक्स्ट वन इज कटिंग. कटिंग क्या है? जो नॉर्मली हम करते हैं, कट करते हैं स्टेम को, फिर जाके उसके मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं, फिर वहाँ से रूट्स ग्रो करके जैसे एक पूरा प्लांट बन जाता है. रोज, पाइनएप्पल ऐसे हम लगाते हैं, राइट. देन एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. एडवांटेजेस क्या है? सच प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मच ईजियर देन दोज प्लांट्स रेज्ड बाय सीड्स. जैसे देखो, सीड लगाओ, फिर उसके स्प्राउट होने का इंतज़ार करो, लॉन्ग टाइम होता है. लेकिन अगर हम पूरा पौधे के छोटे से पार्ट को लगा दें तो वहाँ से हो सकता है नया प्लांट. इवन प्लांट्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स, जिनके सीड्स ही ना बने, जैसे बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, उसको भी हम इसी तरह से उसका प्रोपागेट करा सकते हैं. ऑल डॉटर प्लांट्स आर जेनेटिकली सो सिमिलर टू दैट प्लांट दैट दे एग्जिबिट ऑल द पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. और ये सेम होते हैं बिकॉज उन्हीं के बॉडी पार्ट से आए हैं, राइट. यस. सो माय डियर किड्स, टू प्लांट ए गार्डन इज टू बिलीव इन टुमारो. जैसे कि मान लो हमने एक पौधा लगाया, क्या हमें पता है ये कब बड़ा होगा, कब हमें फ्रूट्स देगी? वी विल बी देयर और नॉट, हम उसे देखने के लिए ज़िंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन हम लगाते हैं, राइट. इट मीन्स दैट वी आर बिलीविंग इन टुमारो, कि हम पौधा लगा रहे हैं, ये बड़ा होगा. इट मीन्स वी बिलीव इन टुमारो, राइट. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन टुडेज क्लास. रिवाइज इट, मेक नोट्स ऑल्सो. So at last I would like to request you, be a part of our eTution family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and happy reading. Thank you.